morning, girls, and a very warm welcome to your second part, which is the second part of the chapter Components of Food. In Hindi medium, that chapter is Bhojan Evam Swasthya. In the last video, we have already read about an introduction about the components of food. There were three major groups into which the food was being divided. There was this energy giving food, protective food, and bodybuilding food. Energy giving, protective, and bodybuilding. Before continuing with the chapter, let me tell you once more that you will be having your unit test, and already the syllabus has been sent to you, so kindly prepare yourselves. And the second most important thing, that do not be dependent only upon the book exercise, neither on the question answers which are given at the back. ठीक है, सिर्फ बुक एक्सरसाइज पे मत डिपेंड रहिएगा और ना ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे जो कि पीछे आपके चैप्टर्स के दिए हुए हैं. ठीक है, इट्स बेटर that you please go through the chapter in between. Read the chapters thoroughly so that you can understand it, and if you have doubt, kindly ask when the Zoom class or Google Meet class we are taking. Okay? So please go through the chapter once, twice, thrice, जितनी बार भी आप उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि questions in the unit test will not be coming only from behind the chapter. Means जो पीछे exercise वगैरह दी हुई है सिर्फ उसमें से नहीं आएगा. I'll make the questions from in between. So read the chapters thoroughly, and if you have any doubts, ask in the Zoom, Google Meet or Zoom class, whatever. ठीक है? So please go through the chapter, read the chapter. ठीक है? And for science and maths as well, the syllabus has already been sent to you, and for maths also the same thing is there. The book exercise has been given to you, but it's the questions will not be same. Okay, so do not try to write the answer from the answers which are given at the back. The questions will be made by me, so you have to solve it, and then whatever the answer will be there, you have to write the answer. Okay? And if you have doubts, kindly clarify when the Google Meet is being taken. Okay? किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज पूछ लेना. ठीक है, अपने अंदर मत डाउट रखना, जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लेना. Okay? Now coming back to the topic. Last time we have discussed already about the different food groups: energy giving, protective, and bodybuilding. So now we'll be continuing with the components of food. हमारे food के components, सबसे पहला है carbohydrate. See, carbohydrate, as you might have already heard about this word carbohydrates. Carbohydrates are found. The main source of carbohydrate is the sugar, starch. ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. और सोर्स क्या है? सोर्स कहाँ है, मतलब कहाँ पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स? जो मीठी चीज़ें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. उसमें जैसे चीनी वगैरह होती है, वो सब मीठी चीज़ें हैं. उसमें भी शुगर और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है. लाइक ग्लूकोज इज देयर, उसमें भी ग्लूकोज होता है. चीनी भी एक मीठी चीज़ है. देन राइस इज देयर, पोटैटो इज देयर, स्वीट पोटैटो इज देयर. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड थिंग इज दैट कि इफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी टेक, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बन जाता है. ठीक है, हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द डिजीज डायबिटीज़. शुगर हो जाता है. आपके घरों में भी किसी ना किसी को होगा ही, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स और समवन. तो ये क्यों हो जाता है? ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से ये
ऐसा हो जाता है। तो दैट्स वाई दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और शुगर, दे आर नॉट अलाउड टू टेक द स्वीट थिंग्स। वो मीठा नहीं खा सकते हैं, isn't it? They cannot eat sugar, they cannot eat potato, they cannot have rice। मीठी चीज़ें बिल्कुल उनको मना होती हैं। तो ये इसी वजह से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो डायबिटीज़ और शुगर डिजीज़ हमारी बॉडी में हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स टोल्ड नॉट टू इंटेक मच शुगर। ठीक है, तो एट सोर्सेज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, द स्वीट पोटैटो, राइस, पोटैटो, जो मीठी चीज़ें होती हैं ये सब हमारे शुगर लेवल को, हमारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह को लेवल को उसको बढ़ाते हैं। सो दिस मस्ट बी टेकन इन लिमिटेड अमाउंट ओनली। ओके, देन आवर नेक्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स के बाद देयर इज आर फैट्स। फैट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैट्स का सोर्सेज क्या क्या होता है। देयर आर मीट, देयर आर फिश, जो ऑयल हम खाते हैं दैट ऑल्सो कंटेन फैट्स, जो घी होता है। तो ये सारी चीज़ें वनस्पति ऑयल वगैरह में ये सब फैट्स पाया जाता है। एंड फैट्स कहाँ पे स्टोर होता है? फैट इज बीइंग स्टोर्ड बीनेथ आवर स्किन। हमारे स्किन के नीचे जो हमारी जो ऊपर की जो स्किन है उसके नीचे एक फैटी लेयर होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे शरीर को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी मोटे आदमी को अगर आप देख लेंगे तो कहेंगे कि अरे उसके तो बहुत फैट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुबले पतले आदमी में फैट्स कम होते हैं। फैट्स दैट इज गुड बट नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी इज नॉट गुड। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हो जाएगा तो इट मे बी अ कॉज ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, दोज पीपल हु आर वेरी फैट, जिनको बहुत ज़्यादा फैट है जिनकी बॉडी में, दे हैव चांसेस ऑफ सम हार्ट डिजीजेस। उनकी बॉडी में जो फैट अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, पूरी बॉडी में फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है, एंड दिस माइट बी अ कॉज ऑफ सम हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक और ये सब कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं वो। मतलब कि जिनकी बॉडी में ज़्यादा फैट्स हो जाते हैं तो दे आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। उनको पॉसिबिलिटी है कि उनको हार्ट डिजीज़ होगी। फैट्स ज़्यादा होगा, शुगर प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स की वजह से होती है। तो फैट को भी कंट्रोल करना नेसेसरी होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट कि फैट्स हमारी स्किन के नीचे की लेयर में होता है। तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर टू मीन्स हमारी बॉडी में इंसुलेटर्स की तरह काम करता है। इंसुलेटर्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी को उनको ठंड कम लगती है। सो दैट इंसुलेटर्स, द फैटी लेयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर prevent the heat loss from the body to outside। ठीक है, जो फैटी लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है। ठंड कम क्यों लगती है? बिकॉज दिस फैट्स एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। जो चर्बी होती है हमारी बॉडी की, वो हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन रखने का काम करती है। हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और ठंड बहुत कम लगती है। ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी की जो फैटी लेयर है वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है। और ठंड में तो ठंड कम लगती है बट गर्मी में गर्मी इसी वजह से बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी में ही मेंटेन रहती है एंड इट डज नॉट लेट आवर बॉडी हीट टू मूव आउट। ओके, तो दैट्स व्हाई फैटी लेयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड मीन्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम करता है ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम्स, यानी कि कोल्ड सीजन में वो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, एंड व्हेन दोस फैटी पीपल डू द एक्सरसाइज, जो अपने जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बहुत सा पसीना होता है। तो वो पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि जो फैटी लेयर होती है वो स्वेट रिलीज करती है। ठीक है,
and when it releases sweat, it comes out from the body in the form of sweat, in the form of urine also. Okay, that is one the fats is all about. Next is proteins. प्रोटीन्स का मेन सोर्स है दाल, ठीक है, एंड मीट में भी प्रोटीन्स पाया जाता है. सो प्रोटीन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड. दोज पीपल हु जो लोग जिम करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, दे एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी एन एग्जाम्पल ऑफ द मूवी दंगल ऑल्सो, उसमें भी शो किया था. तो दे प्रोटीन इनटेक इज मच नेसेसरी फॉर देम. प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है विच इज़ नेसेसरी फॉर देम. बॉडी बिल्डिंग फूड है, इस वजह से जिसको कि अपनी बॉडी वगैरह बना रहे थे, प्रोटीन शेक लेते हैं, मीट भी खाते हैं, एंड दाल इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स. तो हमारी प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. वन मोर थिंग वॉज दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स देते हैं, ठीक है. व्हेनेवर वी नीड क्विक अमाउंट ऑफ एनर्जी, फैट्स कैन ऑल्सो बी वन सप्लीमेंट टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है. तो मगर फैट्स जो है, फैट्स आर मोर एनर्जी सप्लायर्स, ओके, दैन कार्बोहाइड्रेट्स. कंपेयर अगर हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का, तो जो फैट्स होते हैं दे आर मोर गुड एनर्जी सप्लायर्स दैन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. तो ये थी प्रोटीन. प्रोटीन दाल वगैरह में मिलता है. दे आर हेल्पिंग टू बिल्ड आवर बॉडी. हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में प्रोटीन्स आर मोर हेल्पफुल. देन इज विटामिन्स. Vitamins are another food components. See what the vitamins do. Vitamins protect our body from diseases. Vitamins जो है, it protects our body from various diseases. So it acts like a protective shield. Vitamins कहाँ मिलता है? बटर में, घी में, ये सब जगह पर भी vitamins पाए जाते हैं. फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कॉड फिश लीवर. जो कॉड ऑयल्स होते हैं, लीवर कॉड ऑयल्स जो होते हैं, उसमें भी विटामिन्स पाए जाते हैं. तो बूस्ट अप द इम्यूनिटी, ठीक है. जो इम्यूनिटी होती है, उसको बूस्ट अप करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दीज विटामिन्स प्ले. यू माइट हैव हर्ड ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम दैट लेमन, boost up the immunity we must take more vitamin C. Vitamin C, vitamins के कई सारे types हैं vitamins के. One is vitamin A, B, C, D, E, K. ये सारे vitamins के type हैं, ठीक है. तो during this vitamins जो होते हैं, वो सारे vitamins equally important हैं. But vitamin C was the main thing to boost the immunity during this COVID time. It was told to जितना आप नींबू खाएं, ऑरेंज खाएं, that will boost up your immunity. Vitamin C was playing the most important role during this pandemic time. ठीक है. तो vitamins, अलग अलग vitamins के अलग अलग सोर्स हैं. जैसे विटामिन सी का मेन सोर्स है लेमन. तो ऐसे जितने भी विटामिन हैं, उन सबके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, एंड दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है. हमारा नेक्स्ट फूड कंपोनेंट है मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सी मिनरल्स के अब मिनरल्स तो बहुत तरह के होते हैं. प्लांट्स एंड उसमें प्लांट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं, तो मिनरल्स के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के सेल्स को
के ग्रोथ में और उनके रिपेयरिंग में दैट हेल्प्स। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स वगैरह में, बोन्स में जो जैसे कि हमारे बोन्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल्स विच हेल्प्स आवर बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। हमारे टीथ में, हमारे बोन्स में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज़ वन फॉर्म ऑफ मिनरल, ठीक है। हमारी हड्डियों वगैरह में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम हम कहाँ से क्या पिएंगे कि कैल्शियम मिल जाता है, वी ड्रिंक मिल्क, बिकॉज मिल्क में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम होता है। एंड विटामिन डी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स है दिस सनलाइट। ऐसा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। सो विटामिन डी लेने से भी हमारी जिन लोगों को अगर जैसे कि बोन्स में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों वगैरह में दर्द होता है, तो उनको कैल्शियम लेने के लिए कहा जाता है और सुबह की धूप लेने के लिए कहा जाता है, बिकॉज दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मिनरल्स, आयरन इज ऑल्सो वन ऑफ द मिनरल्स। आयरन वगैरह खाने से हमारे बाल अच्छे रहते हैं और हमारी आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। आयरन बहुत सारे सोर्सेस में मिलता है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस आंवला, इन दैट ऑल्सो वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन। साग वगैरह में अच्छे आयरन मिल जाते हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट, दिस आयरन, दिस कैल्शियम, ये सब दीज आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स ओनली, ठीक है। वो सब एग्जाम्पल्स हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स के, ठीक। नेक्स्ट इज वाटर। ये सारा फूड कंपोनेंट खाने के बाद हम ज़रूर है कि वाटर पीते ही हैं, पानी हम पीते हैं ना। सो वाटर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट अदर दैन दीज फूड कंपोनेंट्स। ये वाटर हमारे लिए सब ज़रूरी है, ठीक। वाटर इज़ हेल्पफुल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वाटर के। पहले चीज़ तो इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन। हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। नेक्स्ट, दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस bones and joints problem, the doctor advises them to take enough water because जो हमारे joints होते हैं, ये joints जो होते हैं, ये एक तरह से जो दो बोन्स होते हैं ये आपस में रगड़ खाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जब हम अगर हमें अपनी जितने भी हमारे बोन्स हैं वो एक दूसरे बोन से जुड़े हुए हैं तो वो जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए देयर इज वाटर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोन्स। तो अगर वाटर की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ये जो बोन्स हैं ये आपस में रगड़ खाने लगेंगे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट योर नीज ऑल्सो। सबसे ज़्यादा लोगों को नीज में दर्द होता है, बैक पेन होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो जो दो बोन्स हैं पानी की कमी की वजह से आपस में रगड़ खाने लगेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, द पीपल विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द जॉइंट पेन, नीज पेन एंड ऑल दिस। सो वाटर इज एडवाइज देम टू टेक इनफ ऑफ वाटर। देन जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सब उसमें भी हेल्प करता है। देन इट कीप्स आवर बॉडी कूल। व्हेन वी आर टेकिंग इनफ ऑफ वाटर तो हमारी बॉडी से स्वेट और यूरिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता रहेगा, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प टू मेक आवर बॉडी कूल, मतलब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होगा इट विल बी मेंटेन प्रॉपरली, ठीक है। सो वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेन एवर एनीबॉडी इज फीलिंग, मीन्स किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, ठीक है। तो पानी पिलाने से हो सकता है थोड़ा सा वाटर लेवल नॉर्मल हो जाए एंड द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, ठीक है। तो ये होता है पानी।
जब हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है एंड वी डू नॉट टेक वाटर, तो हमें प्यास लगती है। हमें प्यास इसी वजह से लगती है, हम लोग को जो प्यास लगती है वो इसी वजह से लगती है, बिकॉज व्हेन आवर बॉडी रिलीजेस वाटर, स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम्स, हमारी बॉडी से पानी निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी में जो पानी का लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। एंड व्हेन वी ड्रिंक वाटर इट इज़ मेंटेन्ड अगेन एंड देन वी फील बेटर। जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि चक्कर आने लगता है डिहाइड्रेशन की वजह से, गर्मी में अक्सर लोगों को चक्कर आने लगता है बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है, और फिर जब किसी को पानी पिलाया जाता है तो उसकी बॉडी का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, देन द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं वाटर के। देन वन मोर थिंग इज देयर अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। See, I have already told you about the balanced diet. Balanced diet क्या होती है? Balanced diet is the diet which comprises of all the essential nutrients. Okay, balanced diet comprises of all the essential nutrients which I have already told you. जितने भी components हमने बताए हैं, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water, ये सारी चीज़ें balanced diet में होती हैं। And balanced diet वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, बिकॉज क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस सम ऑफ दी प्रॉब्लम्स। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। अगर आयरन की कमी होगी तो हमारे बाल, बहुत से बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और आँख चश्मा लग जाता है। दैट इज़ अनदर केस कि व्हेन पीपल टू वॉच टू मच ऑफ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स या टीवी बहुत देखते हैं या बहुत आँख को नज़दीक से करके पढ़ाई करते हैं, ये सारे कॉज है। मगर अगर आयरन हमारी बॉडी में प्रॉपर है तो हमारी आँख की रोशनी बनी रहेगी। ठीक है, एंड बैलेंस डाइट लेने से फ़ायदे ये हैं कि वी विल बी हेल्दी। अगर इम्बैलेंस डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो वी आर गोइंग टू फेस मच ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, अगर किसी भी फूड कंपोनेंट का या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में अगर कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है तो वी आर गोइंग टू फेस द डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है देन दैट पॉइंट इज we are facing the nutrients, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में इनटेक नहीं हो पा रहे। एट दैट टाइम द पर्सन विल बी फेसिंग द माल न्यूट्रिशन। दिस माल न्यूट्रिशन इज द इम्बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट्स, मीन्स न्यूट्रिएंट्स में या न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस होता है। तो जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए दैट द बॉडी इज नॉट गेटिंग, एंड दैट टाइम द बॉडी स्टार्ट्स फेसिंग सम काइंड ऑफ डिजीजेस दैट इज सेड टू बी द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट से तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं और बॉडी में किसी न किसी तरह की डिजीजेस घर कर लेती है, उस टाइम पे जो पर्सन होता है that person is said to be suffering from the malnutrition। आप अगर टीवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कुछ बच्चों के पिक्चर्स शो करता है एंड देयर इट इज़ शोन कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। टीवी पे देखा होगा आपने या आपने अपने आसपास कहीं देखा होगा, जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, किसी बहुत ही दुबले पतले, बहुत मीन्स वी फील पिटी ऑन दैम, वी फील पिटी ऑन देम, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो दैट दोज चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड एंड देयर दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस माल न्यूट्रिशन। ठीक है, 2 diseases has been mentioned in your book. One is Kwashiorkor and marasmus.
This Kwashiorkor and marasmus are the protein deficiency diseases. ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि प्रोटीन की कमी से बॉडी में अकर होती है, ठीक है। मेरेस्मस में क्या होता है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है और जो टिश्यूज़ होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, ग्रोथ भी रुक जाती है और बच्चे का मीन्स बच्चा बहुत दुबला पतला या बहुत उसकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है, ठीक है। उसकी जो रिब्स वगैरह की जो हड्डियाँ होती हैं वो दिखने लगती हैं, मीन्स उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से रुक जाती है, ठीक है। उसकी बॉडी में टिश्यूज़ बनने बंद हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल व्हाट, बिकॉज दैट इज़ द मेरास्मस इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड व्हेन इट अकर्स इन सम पर्सन्स बॉडी, उसकी जो ग्रोथ होगी, उसके जो टिश्यूज़ होंगे वो बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वाशियोरकर है। क्वाशियोरकर इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, मीन्स प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, द स्टमक एंड फीट बिकम स्वॉलन, द मसल्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, उसके जो हेयर्स होंगे वो भी रेडिश और फ्रीजी हो जाएंगे, एंड देन द पर्सन इज गोइंग टू फेस सम मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। The person who will be suffering from Kwashiorkor protein deficiency disease, that person will have physical and mental illness, ठीक है। ये सारी diseases है which occur due to the protein deficiency, ठीक। And next, already I have told you when I was telling you about fats कि जब excess amount of fat हो जाता है हमारी बॉडी में तो person क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो दैट इज नोन एज ओबेसिटी, मोटापा। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट किसी की बॉडी में हो जाता है दैट पर्सन इज सेड टू बी ओबेस और ओबेसिटी, मोटापा जिसे कि हम कहते हैं, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। तो यू हैव टू nothing you have to do, you have to just go through the chapter. If you have doubts, kindly clarify during the Google quiz, okay. Now take care of yourselves, have a nice day.